یہ دہشت گرد دوران آپریشن افغانستان میں اپنے سہولت کاروں اور ماسٹر مائنڈ سے سیٹلائٹ فون کے ذریعے رابطے میں تھے. شام کو جو فائنل کلیئرنس آپریشن ہوا ہے جس میں تمام مغوی مسافروں کو بازیاب کروایا گیا ہے، سب سے پہلے فورسز کے نشانہ بازوں نے خودکش بمباروں کو جہنم واصل کیا جی، اور پھر مرحلہ وار بوگی سے بوگی کلیئرنس کی اور وہاں پر موجود تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا. ان کی کل تعداد 33 ہے. آپریشن کے دوران جو کلیئرنس آپریشن تھا اس میں کسی بھی معصوم مسافر کو نقصان نہیں پہنچا. فائنل کلیئرنس سے پہلے وہاں پر جو مسافر دہشت گردوں کی بربریت کا شکار ہوئے ان کی تعداد 21 ہے. اس کے علاوہ ریلوے پکٹ پر تعینات 3 FCC جوان شہید ہوئے، جبکہ FCC کی غزہ بند سکاؤٹس کا ایک جوان کل دوران آپریشن شہید ہوئے. جعفر ایکسپریس پر حملہ، سیکورٹی فورسز کا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن مکمل. تمام یرغمال مسافروں کو بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا. تمام 33 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا. آپریشن سے پہلے دہشت گرد 21 معصوم جانیں لے چکے تھے. آپریشن کے دوران کسی معصوم شہری کی جان نہیں گئی. FCC کے 4 جوان شہید ہوئے، 3 جوانوں کو چوکی کے قریب شہید کیا گیا. کلیئرنس آپریشن کے دوران کوئی جوان شہید نہیں ہوا. DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو. کہا کہ دہشت گرد سیٹلائٹ فون کے ذریعے افغانستان میں اپنے ماسٹر مائنڈ اور سہولت کاروں سے رابطے میں تھے. مسافروں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے تھے. بیرونی آقاؤں کی اعماء اور سہولت کاری کے ذریعے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا گیا. دہشت گردوں کا دین اسلام و بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں. کسی کو معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دیں گے. دہشت گردوں سے آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو کے دوران سیٹلائٹ تصاویر کی مدد سے جعفر ایکسپریس پر حملے کی تفصیلات بتائیں اور آگاہ کیا کہ کلیئرنس آپریشن کیسے کیا گیا. انہوں نے کہا دہشت گردوں نے 3 ٹولیوں میں مسافروں کو بٹھایا ہوا تھا. مسافروں کی ٹولیوں کے ساتھ خودکش بمبار بھی موجود تھے. پاکستان ایئر فورس کی مدد سے جوانوں نے سب سے پہلے ان خودکش بمباروں کو نشانہ بنایا، پھر ایک ایک بوگی کو کلیئر کرایا گیا. کلیئرنس آپریشن میں بڑی احتیاط برتی گئی. کسی مسافر کو نقصان نہیں پہنچا. ہم نے بغیر نقصان کے یرغمالیوں کو بازیاب کرایا. ریلوے حکام کے مطابق ٹرین میں 440 مسافر سوار تھے. ریسکیو آپریشن میں پاکستان آرمی، ایئر فورس، FCC اور SSG کمانڈوز نے حصہ لیا. جیسے ہی واقعہ ہوتا ہے تو چند منٹوں میں ہی بھارتی میڈیا میں نہ صرف اس واقعے کی گمراہ کن رپورٹنگ شروع ہو جاتی ہے، بلکہ آپ نے شاید یہ دیکھا بھی ہو کہ پرانی فوٹیجز، پرانی تصاویر، انفیکٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی ہوئی ویڈیوز اور تصاویر بھی وہاں پہ نشر کرنا شروع کر دی جاتی ہیں. کچھ مخصوص ہمارے جو سیاسی عناصر ہیں پاکستان میں بھی، وہ بھی جو ہے بڑھ چڑھ کر اپنے سوشل میڈیا کو ایکٹیو کر لیتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنی ریاست کے اور عوام پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، وہ دہشت گردی کے اس بھیانک عمل کے لیے بے بنیاد جواز پیدا کرتے نظر آ رہے ہیں. اور افسوس ہوتا ہے کہ کچھ ذاتی اپنے سیاسی اقتدار کی ہوس میں کچھ عناصر قومی مفاد کو بھی بھینٹ چڑھا رہے ہیں. واقعے کے چند منٹوں بعد بھارتی میڈیا پر گمراہ کن رپورٹنگ شروع ہوئی. بھارتی میڈیا پر پرانی اور AI سے بنائی گئی ویڈیوز چلائی گئی. دہشت گرد اور ان کے آقاؤں کا گٹھ جوڑ واضح ہو گیا. DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو. کہا پاکستان میں کچھ مخصوص سیاسی عناصر بھی بے بنیاد پروپیگنڈا کرتے ہیں. سیاسی اقتدار کی ہوس میں کچھ عناصر قومی مفاد کو بھی بھینٹ چڑھا رہے ہیں. پاکستان کی باشعور عوام ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. پاک فوج روزانہ کی بنیاد پر 160 سے زائد انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کر رہی ہے. ہماری شہادتیں اور قربانیاں قوم اور دنیا کے سامنے ہیں، جو اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف مساہمت کی علامت ہیں. DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو. کہا مگر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیاست دانوں اور معاشرے کے کردار پر بھی سوالیہ نشان ہے. دہشت گردوں کو قانون کے مطابق سخت سے سخت سزائیں ملنی چاہیے، مگر اس معاملے میں ہم کہاں کھڑے ہیں یہ دیکھنا ہوگا. نیشنل ایکشن پلان کے مطابق فیصلہ ہوا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف قوم کا ایک بیانیہ ہوگا. اس کا کیا بنا؟
आप कुछ लोगों को कभी कभी तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, मगर हमेशा सबको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहते हैं कि जवानों की महारत और सिपा सलार की क़यादत की बदौलत बगैर नुकसान ऑपरेशन मुमकिन हुआ। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन इंतहाई महारत के साथ किया गया। जवानों ने बहादुरी और दलेरी से 33 दहशतगर्दों को हलाक किया। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों और मुसाफिरों की शहादत पर अफसोस का इजहार। कहा कि शहरियों को नुकसान पहुंचाने वालों का दीन इस्लाम और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। मासूम शहरियों पर हमला करने वालों को हर मुहाज पर शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म हैं। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दहशतगर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले भी किए जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है हम बड़े साने से बच गए। बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन मंतकी अंजाम को पहुंच गया। ऑपरेशन के दौरान 33 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। ऑपरेशन के दौरान एक शहादत का भी ना होना किसी मौजज़े से कम नहीं। फाइनल ऑपरेशन से पहले 4 FC जवान शहीद हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ की खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि BLA के दहशतगर्दों की साजिश नाकाम हुई, ये कभी कामयाब नहीं होंगे। दहशतगर्दों के हैंडलर्स सपोर्टर्स का ताक़ुब किया जाएगा। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ देंगे। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाया जाएगा। भारतीय मीडिया ने वाक़े पर बहुत प्रोपेगेंडा किया। तहरीक इंसाफ को भी शर्मसार होना चाहिए, ये झूठा बयानिया चला रहे थे। भारतीय मीडिया, BLA और PTI ने इस वाक़े पर एक ज़ुबान बोली। BLA, भारतीय मीडिया और PTI के झूठे बयानियों को भी शिकस्त हुई है। बाद सियासी अनासर ने वाक़े को अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल किया। जिन लोगों ने इस वाक़े पर सियासत की मज़म्मत, जो रियासत पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत मुकम्मल तौर पर उनका कला कमा करेगी। आईनी तौर पे हमारा यह हक है कि बंदूक का जवाब बंदूक से दिया जाए। रियासत ने यह जंग लड़ना अभी शुरू ही नहीं की। जिस दिन रियासत ने यह जंग लड़ना शुरू कर दी ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन हारा कौन जीता। ये खून जो बहाया गया है, इस खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएगा उसका खात्मा करेंगे। जो रियासत तोड़ने की बात करेगा उसका कलाकमा करेंगे। कोई भी मुल्क तोड़ने की बात बर्दाश्त नहीं करता। 1 इंच पर भी किसी को कब्जा करने नहीं देंगे। रियासत मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन ये मुज़ाकरात करना नहीं चाहते। क्या रियासत दहशतगर्दों से माफ़ी मांगे? हमें अब इस लड़ाई को समझने की ज़रूरत है। दहशतगर्द बंदूक के ज़ोर पर अपना नज़रिया मुसल्लत करना चाहते हैं। कलअदम तंजीमें बंदूक के ज़ोर पर अपनी बात करते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, बलूचिस्तान में कौन कत्ल गारत कर रहा है, हम उनका नाम लेने से क्यों घबराते हैं, क्यों हकीकत पर बात नहीं की जाती। रियासत की जानिब से बार बार मौका दिए जाने के बावजूद दोबारा इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं। निहत्ते मजदूरों और मुसाफिरों को मारा जाता है, आम बलोच को वर्गलाया जाता है। ये कौन सी बलोच रवायात हैं? दहशतगर्दी फैलाने का मसला सियासी नहीं है। दहशतगर्दी की जंग घर घर तक पहुँच गई है। हुकूमत और अपोजिशन को अब सोचना होगा। हुकूमत ने अपनी रिट कायम करनी है। बलूचिस्तान में अमन का सूरज बहाल करेंगे। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला, दुनिया का सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीकी सफारतखाने के दहशतगर्द हमले और मुसाफिरों को यरगमाल बनाने की शदीद मजम्मत। कहा कि हम इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमेरिका ने BLA को एक आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दे दिया। चीन की भी दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान की भरपूर हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना कोरेंका की भी हमले की मजम्मत। कहा कि हमारी हमदर्दियाँ पाकिस्तानी अवाम और मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। ईरान की भी मुसाफिर ट्रेन पर हमले की मजम्मत। शहरियों को निशाना बनाना खौफनाक है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा फ्रांस की बलूचिस्तान में हमले की मजम्मत। मुतासरीन और उनके अहलखाना के साथ हमदर्दी का इजहार। जर्मनी के सफ़ीर की मुसाफिर ट्रेन पर हमले की मजम्मत। सियासी मकासद के लिए किसी बेगुनाह का खून बहाना अफसोसनाक है। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। जर्मन सफ़ीर, तुर्किया, नॉर्वे, रोमानिया, रूस और UK की भी ट्रेन हमले की शदीद मसम्मत।
अफवानी PTI का अपना वजन दहशत गर्दों के पलड़े में डाल देना अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत है। दूसरों को हदूद याद दिलाने वाले की अपनी भी कोई हदूद है या नहीं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले और सैकड़ों मुसाफिरों के अगवा की मजम्मत की जाए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सोशल मीडिया पर पैगाम। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि बलूचिस्तान में भारत की मदद से आग लगाई जा रही है। दहशत गर्दों का खात्मा करेंगे। जब कोई शख्स मुसल्लह होकर बात करे तो फिर सियासी बात नहीं होती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर की मुलाकात। मुआशी इस्तेहकाम पर हुकूमती टीम की तारीफ। मुशावरती अमल का हिस्सा बनाने पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम का हुसूल पहला जीना है। मुल्क की तरक्की का सफ़र अब शुरू हुआ है। मुईशत की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। कारोबारी बरादरी के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत आपका भरपूर साथ देगी। पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी ने मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद सनत और तिजारत का सिलसिला जारी रखा। हुकूमत कारोबारी बरादरी की सहूलत के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। ताजिर बरादरी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू में इजाफे के लिए सिस्टम में इस्लाहात पर अपनी तजावीज़ दे। शुरका ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक मस्बत करार। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मोडीज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी बैंकों की कारकर्दगी माजी के मुकाबले में बेहतर रही। मुस्बत आउटलुक इस बात की निशानदही है कि मईशत में कुछ इस्तेहकाम आया। रवा माली साल पाकिस्तानी मुआशी नमू 3% रहने की तवक्को। गुज़श्ता माली साल पाकिस्तानी मुआशी नमू 2.50% रही थी। पाकिस्तानी मईशत सुस्त मगर बहाली की राह पर गामज़न है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने 1 लाख हुनरमंद नौजवानों की ट्रेनिंग और मुलाजमत का टारगेट दे दिया। मरियम नवाज की हुनरमंद नौजवानों को तरजीही बुनियादों पर कारोबार कार्ड और कारोबार फाइनेंस लोन देने की हिदायत। हुनरमंद अफरादी कुव्वत बैरून मुल्क भेजने के लिए जामे प्लान तलब। मरियम नवाज ने कहा है कि हुनरमंद नौजवान पाकिस्तान का आज और कल हैं। नौजवानों को तरक्की के सफ़र में शामिल करने के लिए ट्रेनिंग और जॉब मार्केट मुहैया करेंगे। किसी फौजी एहलकार के काम में रखना डालने का जुर्म इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत आता है। 9 मई वाक़यात में दूसरा जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत है। FBI केस में बुनियादी हकूक़ का सवाल तो आया है। हम मरकजी फैसले से इत्तफाक भी कर लें तो अपनी राय अलग से दे सकते हैं। जस्टिस जमाल मुद्दखेल के सिविलियंस के ट्रायल का लदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि 9 मई के वाक़यात में इंसदादी दहशतगर्दी का कोई जुर्म नहीं था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आर्मी एक्ट तो खुसूसी तौर पर अफवाज पाकिस्तान के मेंबरान के लिए है। न्यायनी बेंच है, कोई हाई कोर्ट नहीं कि दायरा समाअत महदूद होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा है कि नया आईनी बेंच मुकदमा सुन रहा है, तमाम मेरिट्स ज़ेर बहस आ सकते हैं। दूसरी तरफ के वकला ने कहा कि इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा महदूद है। केस की समाअत आज फिर होगी। आज़ाद कश्मीर वादी नीलम में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। कोयटा नोश की योब में बारिश से मौसम सर्द। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शिगर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। बलाई और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया।